myself Sunil Kumar Singh, Assistant Professor Mathematics, Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow. Today my lecture of Engineering Mathematics 1, subject code KS 103T, and the topic of Module 3, Jacobians. After this lecture, student will be able to understand the course outcome 3 topic Jacobians, and a student will be able to understand the what is the uses of Jacobian, why we study Jacobian, and basically it gives the concept of transformation from one coordinate to another coordinate. Jacobian was a great mathematician who has given the concept of transformation, that is why this topic is known as Jacobian. But mathematical definition or mathematical meaning of the Jacobian is functional determinant. So, Jacobian is a functional determinant useful in transformation of variables from Cartesian to polar, cylindrical and spherical polar coordinate in multiple integrals. Jacobian is named after the German mathematician Carl Gustav Jacob Jacobi, which has contributed 1804 to 1851, who has made significant contributions to mechanics, partial differential equations, astronomy, elliptic functions and the calculus of variations. So, next from this we can easily see that how coordinate transform from one to another. So, in this PPT I have shown that transformation of one coordinate to another coordinate. Now, comes the what is the definition of Jacobian. So, suppose x is the function of u v, y is the function of a v, then the Jacobian of x and y with respect to u and v denoted by del x y upon del u v and is defined as functional determinant and is defined as del x by del u, del x by del v and del y by del u, del y by del v, determinant of this. That is why it is also known as functional determinant. Okay. So, it is the definition of Jacobian, and this is nothing but solution of this determinant, cross multiplication, this into this minus this into this. So, it is written here. So, it is the definition of Jacobian. Okay. Next comes properties of Jacobians. What is the properties of Jacobian? First property is that suppose u and v are the function of r and s, where r and s are the function of x comma y, then the Jacobian of u v with respect to x y, u v with respect to x y is equal to u v upon r s into r s upon x y. So, this is also known as chain rule. And second property is that if J1 is the Jacobian of u comma v with respect to x comma y and J2 is the Jacobian of x comma y just reciprocal with respect to u comma v. So, here u comma v with respect to x comma y, but another Jacobian J2 just opposite x comma y to u comma v, then J1 into J2 is equal to 1. For any function we will verify this rule that Jacobian property holds true for any function x comma y or u comma v. Okay. Next comes Jacobian of implicit function. So, before defining the Jacobian of implicit function, first of all we should know what is implicit function. Okay. So, implicit function is nothing but connected function. Simply or roughly we can say that connected function. Connected function means suppose u and v are connected with x and y. Okay. U and v are connected with x and y, or vice versa, or x and y are connected with u and v.
connected with even v, which can't be separated. For example, suppose x cube plus y cube is equal to u plus v, or x square plus y square is equal to u square plus u cube plus v cube, like that. So, these are the examples of implicit function which can't be separated, that is known as implicit function. So, now here we will discuss the Jacobian of implicit function, but before that we should know what is implicit function. So, implicit function nothing but the function which are connected, we can't be separated, that is why it is known as implicit function. So, here we will discuss the Jacobian of implicit function. How we will find the Jacobian of implicit function? So, before finding the Jacobian of implicit function, first of all we will convert them in the form of function. So, here I have converted f1 u1 u2 u3 comma x1 x2 x3 is equal to 0. I have taken the example of 3 u1 u2 u3 and x1 x2 x3. Means I have taken the examples that u1 u2 u3 are connected with x1 x2 x3 and converted that in the form of function f1 u1 comma u2 comma u3 comma x1 comma x2 comma x3 is equal to 0. Likewise, another function f2 u1 u2 u3 x1 x2 x3 is equal to 0. Likewise, f3 u1 u2 u3 x1 x2 x3 is equal to 0. Now, the Jacobian, suppose question asking Jacobian of u1 u2 u3 with respect to x1 x2 x3, then the general formula minus 1 ki power 3. Why it is 3? Because they are 3 function. Why it is 3? Because it is 3 function. If it is 2, then we will write minus 1 ki power 2. So, in general we will say that minus 1 ki power n del of f1 f2 and dot 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 fn upon में del of x1 x2 dot 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 xn divided by del of f1 f2 f3 fn upon में del of u1 u2 u3 dot dot even. So, in general we will say that minus 1 की पावर n जितने फंक्शन होंगे, सपोज n फंक्शन है तो माइनस 1 की पावर n. सो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था 3 का, लेकिन मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म में बताया कि माइनस 1 की पावर n होगा डेल f1 f2 f3 fn अपॉन डेल x1 x2 x3 xn. एक और मैं तरीका बताता हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कि सपोज u1 u2 u3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 प्रॉब्लम में पूछा है, तो पहले जो लिखा हुआ है उसको आप फंक्शन के रिस्पेक्ट ऑफ पहले फाइंड आउट करेंगे. मीनिंग इज दैट f1 f2 f3 फर्स्ट वी विल कैलकुलेट f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3, देन f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x1 f2 x3. जो पहले लिखा उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उस डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 की पावर कर देंगे, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन हम लोग फाइंड कर लेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो हम लोग को इसमें समझ में आ गया कि जैकोबियन फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे फाइंड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है वो डिफाइंड किया, एंड देन फार्मूला फॉर द जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना. सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप में दो बातें हम लोग को डिस्कस करना है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनली डिपेंडेंट, है ना. सो सपोज u1 u2 u3 even with the function of x1 x2 x3 and xn, then the necessary condition for the existence of the relation of the form f function f1 f2 f3 even is equal to 0 is that the Jacobian of this should vanish identically. So if Jacobian is equal to 0, functionally, है ना, functionally dependent, if not equal to 0, functionally independent, है ना. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू. नाउ एक फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू आर कोस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा. तो हम लोग को जैसा कि डेफिनेशन से ही ये बात मालूम है, डेफिनेशन से ही ये बात हम लोग को मालूम है कि जैकोबियन इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट. हमारा प्रॉब्लम में देखिए x एंड y डिफाइंड है r एंड थीटा में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट. तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड द जैकोबियन of xy with respect to r theta. So xy with respect to r theta definition nothing but del x by del r, del x by del theta, del y by del r, del y by del theta. So this is the definition of Jacobian, or simply we can say that functional determinant of the given function. Now del x by del r,
डेल एक्स बाई डेल आर, इसको जब पार्सली जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और इसको जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डेल एक्स बाई डेल थीटा, सो दिस बी इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, एंड लाइकवाइज डेल वाई बाई डेल वाई बाई डेल आर आपका हो जाएगा साइन थीटा, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, डेल एक्स बाई डेल आर को कॉस थीटा लिखा, एंड डेल एक्स बाई डेल थीटा को माइनस आर साइन थीटा लिखा, देखिए, एंड डेल वाई बाई डेल आर को हमने साइन थीटा लिखा, एंड डेल वाई बाई डेल थीटा को आर कॉस थीटा लिखा। और इस फंक्शनल डिटर्मिनेंट को जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है वैसे मैंने सॉल्व कर दिया। सो आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है और माइनस है तो ये हो गया प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, एंड सिंस वी नो दैट यहाँ पे यदि आर हम कॉमन ले ले और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू आर। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में देखा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से कि हम लोगों ने किस तरह से जैकोबियन फाइंड आउट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारा है वेरीफाई द चेन रूल फॉर जैकोबियन इफ एक्स बराबर यू, वाई बराबर यू tan v, जेड बराबर डब्ल्यू। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैकोबियन जो है वो चेन रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है, मैंने कहा भी था कि दिस चेन रूल होल्ड्स ट्रू फॉर एनी फंक्शन। सो हेयर वी हैव टेकन वन एग्जांपल x इज इक्वल टू यू, y इज इक्वल टू यू tan v एंड z बराबर w। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम लोगों ने J1 डिनोट किया x y z विथ रिस्पेक्ट टू u v w। x y z चूँकि पहले हमारा फंक्शन x y और z डिफाइंड है इन द टर्म्स ऑफ u v w, तो हमने जैकोबियन पहले फाइंड किया x y z विथ रिस्पेक्ट टू u v w। बाय डेफिनेशन वी कैन राइट डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, डेल x बाई डेल w, है ना, डेल y बाई डेल u, डेल y बाई डेल v, डेल y बाई डेल w, डेल z बाई डेल u, डेल z बाई डेल v, डेल z बाई डेल w। तो हम लोग यहाँ पे पहले मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे डेल x बाई डेल u क्या होगा, डेल x बाई डेल u होगा आपका 1, एंड डेल x बाई डेल v क्या होगा, डेल x बाई डेल v, चूँकि x में v का कोई फंक्शन नहीं है सो दिस इज इक्वल टू 0, एंड डेल x बाई डेल w दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज देर इज नो एनी w ऑफ इन x, डेल x बाई डेल। लाइकवाइज डेल y बाई डेल u, डेल y बाई डेल u क्या हो जाएगा, डेल y बाई डेल u हो जाएगा tan v, एंड डेल y बाई डेल v हो जाएगा, डेल y बाई डेल v हो जाएगा u सेक स्क्वायर v, एंड डेल y बाई डेल w हो जाएगा 0 क्योंकि w का कोई टर्म नहीं, एंड डेल z बाई डेल x ये हो जाएगा 0, डेल z बाई डेल y सॉरी डेल v दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंड डेल z बाई डेल w विच इज इक्वल टू 1। ये सारा वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है, देखिए 1 0 0 u सेक स्क्वायर tan u सेक स्क्वायर v 0 0 0 1, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो मिला मुझे u सेक स्क्वायर v मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड कैलकुलेशन करेंगे J2 जैकोबियन ऑफ u कोमा v कोमा w विथ रिस्पेक्ट टू x y z, लेकिन u v w हमारा डिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को रीडिफाइंड करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू u, सो u इज इक्वल टू ऑल्सो x, नो प्रॉब्लम, बट हेयर y इज इक्वल टू u tan v, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ tan v इज इक्वल टू y बाई u विच इज नथिंग बट y बाई
x, सिंस x इज इक्वल टू u, देयरफॉर v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। तो हमने v को भी x और y का फंक्शन में कर लिया, u भी हमारा x का फंक्शन हो गया, एंड z इज इक्वल टू w, सो वी कैन से दैट w इज इक्वल टू z। तो इसमें हमने क्या किया कि अब हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया u v w इन द टर्म्स ऑफ x y z। तो हमें क्या मिला, u इज इक्वल टू x, v is equal to tan inverse y by x and w is equal to z. Now we will calculate the Jacobian of u comma v comma w with respect to x comma y comma z. So by definition we will say that del u by del x, by definition we will say del u by this is the definition of del u by del x, del u by del y, del u by del z, likewise del v by del x, del v by del y and del v by del z, del w by del x, del w by del y and del w by del z, है ना। और हमने अभी रीडिफाइन किया था, तो देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू x है, तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट 1, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट 0 बिकॉज देयर इज नो एनी टर्म ऑफ y, है ना, एंड u को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ डेल v बाई डेल एक्स, सो डेल v बाई डेल एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिए, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस कंसेप्ट से ये हो गया, एंड y बाई एक्स का माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी को यहाँ लिखा गया है, यहाँ से एलसीएम लेकर के वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर के कैंसिल हो गया, सो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। और डेल बी बाई डेल वाई यदि कैलकुलेट करेंगे तो उसी तरीके से डेल बी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और वाई बाई एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एलसीएम लेकर के एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, ठीक है। एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, सॉरी डेल वी बाई डेल जेड, तो डेल वी बाई डेल जेड 0, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल जेड 0, लाइकवाइज डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स नो एक्स 0, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई नो वाई 0, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड 1, है ना। और फिर इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दिस इनटू दिस, ये तो 0 है एंड 1 टाइम्स, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया कि x को हम लोगों ने लिखा u और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जरा गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टेन स्क्वायर वी, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टेन स्क्वायर वी, जो कि हो जाएगा u, और यहाँ पे यू स्क्वायर आप यदि कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वी, जो कि फॉर्मूले से होगा u से u कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन यू इंटू सेक स्क्वायर वी, है ना, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है ना, देखिए 1 अपॉन यू सेक स्क्वायर वी, है ना, 1 अपॉन यू सेक स्क्वायर वी, ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया। और J1 हमारा फाइंड हुआ था यू सेक स्क्वायर वी, और J2 हमारा मिला 1 अपॉन यू सेक स्क्वायर वी। तो क्लियरली देख रहे हैं आप, J1 इंटू J2 यदि आप करेंगे तो कैंसिल होकर के मिलेगा 1, क्लियर है। मैं अभी बैक साइड दिखाता हूँ, देखिए हमको यू क्या मिला था, J1 क्या मिला था, यू सेक स्क्वायर वी मिला था, है ना, और J2 मिला हमको 1 अपॉन यू सेक स्क्वायर वी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। तो इससे हमें चेन रूल वेरीफाई हुआ जैकोबियन का, जैकोबियन का चेन रूल हम लोगों ने
वेरीफाई किया फॉर एनी फंक्शन x इक्वल टू यू, y इक्वल टू यू tan v, z इक्वल टू w। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, इम्प्लिसिट फंक्शन इज नथिंग बट द फंक्शन विच आर कनेक्टेड एंड कांट बी सेपरेटेड। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए है यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू इजक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इजक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एंड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू is equal to x square plus y square plus z square, then show that this मतलब del u v w upon del x y z is equal to x minus y, y minus z, z minus x upon u minus v, v minus w, w minus u। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन जो डिफाइंड है उसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में f1 f2 f3 के फॉर्म में पहले डिफाइंड करेंगे, फिर हम लोग जैकोबियन फाइंड करेंगे f1 f2 f3 का विथ रिस्पेक्ट टू u v w, then we will find Jacobian of f1 f2 f3 with respect to x y z and by the formula minus 1 की पावर n और n की जगह यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 del f1 f2 f3 with respect to del u v w upon del f1 f2 f3 with respect to x y z, ये हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड करके सिंप्लीफाई करेंगे, साइक्लिक फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारा ये आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि f1 फंक्शन जो है वो लिखा यू क्यू प्लस बी क्यू प्लस डब्ल्यू को एक्स वाई जेड को बाई साइड लाया तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इस तरह से f2 हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू एंड f3 u प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारा 3 फंक्शन हो गया। इसके बाद हमने जैसा कि फार्मूला पहले लिखा था यू बी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, फार्मूला हमारा ये है फॉर फाइंडिंग द जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, फॉर फाइंडिंग द जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, f1 को x के रिस्पेक्ट में, f1 को y के रिस्पेक्ट में, f1 को z के रिस्पेक्ट में, f2 को x के रिस्पेक्ट में, f2 को y के रिस्पेक्ट में, f2 को z के रिस्पेक्ट में, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया तीनों जगह से तो माइनस आ जाएगा और c1 माइनस c3 कर दिया, है ना, एंड c2 माइनस c3 कर दिया, है ना, कॉलम को माइनस कर लिया। तो इससे मुझे क्या मिला अप्लाई करने के बाद ये हमको, तो इससे क्या हुआ हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया और इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ये हम लोग सिंप्लीफाई करके मिला हम लोगों को, है ना। यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स यहाँ से पहले बार में कॉमन ले गया, पहले से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, दूसरे से जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, है ना, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो आपको मिलेगा 6 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ से 3 भी कॉमन लिया 2 भी कॉमन लिया, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड किया जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जब फाइंड किया तो हम लोग को उसी तरह से पार्शियली डिफरेंशिएट किया, f1 को u के रिस्पेक्ट में, f1 को v के रिस्पेक्ट में, f1 को w के रिस्पेक्ट में, f2 को u के रिस्पेक्ट में, f2 को v के रिस्पेक्ट में, f2 को w के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये मिला 3v स्क्वायर 3v स्क्वायर 3w स्क्वायर 2u 2v 2w 1 1 1। जब इनको हम लोगों ने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिला ऑन सिंप्लीफिकेशन, उसी तरह से हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, है ना, C1 C2 में C2 माइनस C3 एंड C1 में C1 माइनस C3 और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 6 u माइनस v v माइनस w w माइनस v माइनस w u माइनस v। और जब इसको हमने डिवाइड किया तो x y z u v w अपॉन एक्स वाई जेड हमको मिला x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपॉन u माइनस v v माइनस w w माइनस u। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम देखा। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन फॉर चेन रूल, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम देखे जिसमें कि हम लोगों ने और एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखा कि हाउ टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ एनी फंक्शन, है ना। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमारा ये था जैकोबियन
का definition of how to find the Jacobian of implicit function, how to find the Jacobian of how to find verify the chain rule for Jacobian.